Good morning, students. Let's continue our chapter number 8, Transport and Communication, in which we will discuss our first mode of transport, that is land transport. It is very important mean of transport among all the transportation system. We have different trends in land transport. First, sometimes in the earlier times, you can say, in the earlier times, humans are also used as a transportation mean, and this term is known as human portage. The human portage term is used when the human beings are used as a transportation system or transportation mean. Like in our hilly areas, for example, hilly or mountainous areas, humans are still used to carry passengers and goods. अब हिली एरियाज में जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो इतना डेवलप नहीं है, इसलिए वहां पर आज भी जो टॉप ऑफ द हिल तक हमें अगर किसी भी चीज को लेके जाना है तो वहां पर ह्यूमन बींग्स का यूज किया जाता है, एंड दिस टर्म इज नोन एज ह्यूमन पोर्टेज. ये आपका 1 मार्क में क्वेश्चन आता है. सेकेंड ट्रेंड क्या था कि जो ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन है उसका जो है प्लेस किसने ले लिया? एनिमल्स ने. तो एनिमल्स आर यूजिंग एज अ ट्रांसपोर्टेशन मीन्स. That is about 3000 years ago when the animals are being used as a transportation mean. And some animals are particularly used to transport goods and passengers to the particular area or particular place or region, and this term is known as pack animals. What do you mean by pack animals? This is also considered as a first 1 mark question in CBSE board. पैक एनिमल्स क्या हैं? कुछ एनिमल्स को पर्टिकुलरली प्लेसेस पर ट्रांसपोर्टेशन मीन के रूप में यूज किया जाता है. फॉर एग्जांपल्स, हॉर्सेज आर यूज्ड एज अ ड्रॉट एनिमल्स इवन इन द वेस्टर्न कंट्रीज. वहां पर जो है लोगों को कैरी करने के लिए हॉर्सेज का यूज किया जाता है. हॉर्सेज ऑलमोस्ट वर्ल्ड के हर पार्ट में जो है एज ए मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट आज भी यूज किया जाता है, चाहे वो हमें पर्सन्स को कैरी करना है या गुड्स को कैरी करना है, हॉर्सेस का उसमें यूज किया जाता है. सिमिलरली, डॉग्स एंड रिएंडर्स आर यूज्ड इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थर्न यूरोप एंड साइबेरिया एज अ ट्रांसपोर्टेशन मीन्स. Mules are still using in the mountainous or hilly region. When you go to the hilly region, you can see the mules as a transportation system which are used to carry persons or passengers or goods. Camels are mostly used in deserted area, like in our Rajasthan. In caravans, you can see the camels. They are used as a transportation mean. They are used to transport goods and passengers from one place to another place in deserted area. So these are the some animals which are used particularly in a region to transport or to carry goods and passengers. So these are known as pack animals. The third trend was the invention of wheel. When the wheel was invented, it created the transportation system more efficient and more faster. First of all, when the wheel was invented, the bullock cart or wagon was introduced and it replaced the animals. So far, fourth invention was the steam engine. Steam engine is the first breakthrough in mechanization of transport. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जो मैकेनाइजेशन आया वो किसके कारण आया? जब स्टीम इंजन इंट्रोड्यूस हुआ. स्टीम इंजन के इंट्रोड्यूस होने से किसको इंट्रोड्यूस किया गया? रेलवेज वाज इंट्रोड्यूस्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टीम इंजन. जैसे ही इन्वेंशन हुआ स्टीम इंजन का, उसके कारण रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ और रेलवेज ने जो है वो गुड्स एंड पैसेंजर्स की एक्सेसिबिलिटीज को इंक्रीज कर दिया, प्लेसेस को, पर्सन्स को आपस में कनेक्ट कर दिया. इवन जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो भी ओपन हो गए फॉर द माइनिंग
फॉर कमर्शियल पर्पसेज, फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेज। अब जो है जो ट्रांसपोर्टेशन है गुड्स का वो सिर्फ एक रूरल एरिया तक ही या एक टाउन तक ही लिमिटेड नहीं था। इट इज ओपन फॉर द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स, यानी कॉन्टिनेंट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक भी अब चीजों को पहुंचाया जा सकता था। उनकी एक्सेसिबिलिटी जो है पॉसिबल थी थ्रू आउट द कॉन्टिनेंट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द रेलवेज। एंड द फिफ्थ वाज द इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन जब इंट्रोड्यूस हुआ तो हॉर्सेस को पूरी तरीके से फुली जो है डिस्प्लेस कर दिया गया। इसको सबसे पहले अप्लाई किया गया प्राइवेट ऑटोमोबाइल्स में। प्राइवेट ऑटोमोबाइल्स जैसे कि आप अपने जो है कार, स्कूटर, ये सब चीजें यूज करते हो, इनमें इंटरनल कंबशन इंजन का यूज किया जाता है। जहां पर हॉर्सेस को प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन मीन के रूप में यूज किया जाता था। इंटरनल कंबशन इंजन के इन्वेंशन से हॉर्सेस को डिस्प्ले कर कर उसको डिस्प्लेस कर कर किसने उसका प्लेस ले लिया? प्राइवेट ऑटोमोबाइल्स ने। After introducing the internal combustion engine, firstly it was used in the private vehicles. Later on it is used for commercial vehicles like truck or tractor, all that. Military vehicles, military truck or tanks, agriculture equipments, tractor और all that. तो इसका जो यूज़ है बाद में डिफरेंट पर्पसेस के लिए किया जाने लगा। अब इसके मेन एडवांटेज क्या थी कि इट कुड बी यूज फॉर प्राइवेट एंड पब्लिक व्हीकल्स। इसे हम प्राइवेट व्हीकल और पब्लिक व्हीकल यानी प्राइवेट जैसे आपका कार, स्कूटर, बाइक्स, पब्लिक व्हीकल्स लाइक बस, इन सब चीज़ों के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। चाहे हमारे रोड्स लार्ज हैं या स्मॉल रोड्स हैं तब भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर इसका एक और एडवांटेज क्या था कि कोई भी टेरेन हो, रफ टेरेन है या हिली एरियाज हैं, उनमें भी हम इन व्हीकल्स का यूज़ कर सकते हैं। इवन आप डेजर्टेड एरिया में चले जाओ, प्लेन एरिया चले जाओ, माउंटेन एरियाज में चले जाओ, हर जगह आपको बस, ट्रक और कार्स ये जो है सारी चीज़ें रोड्स पर अवेलेबल होंगी। तो इससे जो है इसकी ये मेन एडवांटेज रही इंटरनल कंबशन इंजन के इंट्रोडक्शन की। नेक्स्ट जो हमारा लेटेस्ट डेवलपमेंट है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रॉपवेज, केबलवेज एंड पाइपलाइंस। अब आप जाते हो मसूरी जैसे एरिया में जाते हो या हरिद्वार में जाते हो, जब आपको टॉप ऑफ द हिल जाना होता है तो वो बहुत ही लॉन्ग वे रहता है। तो उसके लिए शॉर्टेस्ट वे जो है वो क्या निकाला गया? रोप वे और केबल वे, जिसको आप कहते हो कि ट्रॉली के थ्रू आप जो है वो जो डिस्टेंस को कवर करते हो, नीचे से ऊपर टॉप ऑफ द हिल तक आप जाते हो। तो हरिद्वार में जैसे आप जाते हो मनसा देवी, मोस्टली आप लोग गए होंगे, तो वहाँ पर रोप वेज और केबल वेज का यूज किया जाता है। ये भी हमारा किसमें इंक्लूड है? लैंड ट्रांसपोर्ट का ही एक मीन है ना। तो रिसेंट जो हमारा मीन है लैंड ट्रांसपोर्ट दैट इज पाइपलाइंस। पाइपलाइंस इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द लिक्विड मटेरियल। वी विल डिस्कस इट सेपरेटली इन दिस चैप्टर, बट जस्ट as general information, pipeline is used to carry the liquid material. Firstly, only the water was carried through the pipelines. Now, but now we can transport even the coal in the form of slurry through the pipelines. So these are the trends which we can see in our modern times, or from the ancient to modern times. We have different trends in the land transport. We will discuss the world distribution of land and the advantages of land transport in our next lecture. Have a nice day.